ماہی سیام میں افطار دسترخوان کی رونقیں چھیپا ویلفیئر کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک میں افطار دسترخوان کا اہتمام کیا گیا ہے، جس سے روزانہ 1000 سے زائد مستحق افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد حماد سے۔ جی حماد، آگاہ کیجیے۔ اسی طرح اس سال بھی چیپا ویلفیئر کی جانب سے رمضان المبارک کے پورے مہینے جو ہے وہ افطار کا دسترخوان لگایا گیا ہے، اور آج پہلا روزہ ہے۔ پہلے روزے کی افطاری یہاں پر ابھی ہوئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے، اور یہاں پر بڑا ہی زبردست جو ہے سب سے بڑا دسترخوان یہاں پر سجایا گیا تھا۔ میرے کیمرامین جانشیر آپ کو دکھا سکتے ہیں، ٹیبلوں کی بڑی یہاں پر تعداد موجود ہے، جس سے جو ہے ہزاروں لوگ یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ افطار کی ہے، اور مختلف جو ہے اشیاء خوردنوش یہاں پر موجود تھی، جس میں سموسے، پکوڑے اور اس کے ساتھ ساتھ فروٹ چاٹ، جلیبی، دہی بڑے، مختلف شربت کا جو ہے یہاں پر اہتمام کیا گیا تھا۔ میرے ساتھ ترجمان موجود ہیں چیپا کے، شاہد، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اچھا شاہد بھائی، اس سال بھی آپ بڑا زبردست آپ لوگوں نے یہاں پر افطار کا دسترخوان لگایا ہے، افطار کے ساتھ ساتھ اور بھی کیا کام چیپا ویلفیئر کر رہا ہوتا ہے اس پورے رمضان، اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور تقریباً کتنی تعداد میں لوگ جو ہے اس افطار کے دسترخوان سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ روزانہ کی بنیاد پر پورے پاکستان میں 1 لاکھ افراد کے لیے سیر و افطار کا جو ہے چیپا کچن میں دسترخوان تیار کیا جاتا ہے، اور پورے رمضان جو ہے اس سال بھی پورے پاکستان میں 1 لاکھ راشن جو ہے تمام افراد میں تقسیم کیا جائے گا جو اس کے مستحق ہوں گے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا، لیکن آج بھی ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں لوگ یہاں پر آ کے بیٹھ کے جو ہے افطار کر کے گئے۔ اسی طرح کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں جہاں پر ہمارے سینٹر موجود ہیں وہاں پر افطار کا اہتمام کیا گیا۔ دوسری چیز یہ آئٹم ہم نے دیکھا ہے بہت سارے تھے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ مزدور پیشہ افراد ہیں، جو گھروں کو نہیں پہنچ پاتے اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد، پھر وہ یہیں پر افطار کرتے ہیں، یا راہ چلتے لوگ جو اپنے گھر نہیں پہنچ پاتے، آفس سے نکلتے، وہ بھی یہاں پر رک کر افطار کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے ہمارے ایسے شہر میں اس طرح کے انتظامات ہونا تاکہ لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچے؟ بہت ضروری ہے، جہاں تک لوگوں کی بات ہے، کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے، مہنگائی بہت ہے، اور اس کے بعد فروٹ خریدنا لوگوں کے لیے جو اس کی ان کی پہنچ سے دور ہے، اس لیے چیپا دسترخوان پر فروٹ، جوس، شربت اور بریانی کا اور کھانے کا بندوبست کیا گیا تاکہ وہ اپنا افطار جو ہے اچھے طریقے سے اپنی فیملی کی طرح یہاں سے کر کے جائیں۔ چیپا کے ترجمان شاہد، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے یہاں سے افطار کر کے جا سکتے ہیں، اور خاص طور پر یہاں پر چیپا کی جانب سے جو روزہ کشائی کا بھی جو ہے اہتمام کیا گیا ہے۔ جو ننھے بچے ہیں جو کہ پہلی دفعہ روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر ایک اسٹیج تیار کیا گیا ہے، اور وہ یہاں پر آئیں، یہاں پر جو ہے ان کی روزہ کشائی بھی کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ پہلا روزہ رکھنے پہ جو ہے وہ چیپا کی جانب سے جو ہے وہ انعامات بھی دیے جائیں گے۔ شہری قائد میں گیس مسائل حل نہ ہو سکے، سحری میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ریلوے کالونی کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ سحری میں گیس صرف 15 سے 20 منٹ تک رہی، پریشر انتہائی کم تھا، کھانا ہوٹلوں سے خریدنا پڑتا ہے، مہنگے سلنڈر بھروانے پڑتے ہیں، مہینے میں 7 سے 8 ہزار روپے اضافی خرچہ ہوتا ہے۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ شہر قائد میں گیس بحران، شہری پریشان، سحری کے اوقات میں بھی مشکلات کم نہیں ہو رہی۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جہاں سحری اور افطار کے اوقات میں بھی گیس کی فراہمی یقینی بنانی چاہیے، وہاں شہری گیس کی عدم دستیابی سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ریلوے کالونی کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ سحری کے وقت گیس صرف 15 سے 20 منٹ کے لیے آئی، اس کا پریشر بھی انتہائی کم تھا، جس کے باعث کھانا تیار کرنا مشکل ہو گیا۔ گیس نہ ہونے سے سحری اور افطار کے لیے کھانا ہوٹلوں سے خریدنا پڑ رہا ہے، جس سے اخراجات میں اضافہ ہو گیا۔ کئی گھروں میں سلنڈر استعمال کیے جا رہے ہیں، مہینے میں 7 سے 8 ہزار روپے اضافی خرچ ہو رہے ہیں۔ آج سحری میں گیس آیا تھا، مگر تقریباً 10 سے 15 منٹ تھا، اس کے بعد گیس نہیں آیا۔ بل تو ڈبل آتے، لیکن گیس تو بالکل ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ گیس کب آ رہا ہے کب نہیں آ رہا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران کم از کم سحری اور افطار کے اوقات میں گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ انہیں مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین اجلان کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ گورنر ہاؤس میں عوامی افطار کا اہتمام، جس میں گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ افطار کے بعد قرآن اندازی کے ذریعے خوش نصیبوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ افطار دسترخوان میں نعت خوانی نے بھی سما باندھ دیا۔ مزید جانتے ہیں راہیل بیگ سے۔ جی راہیل، آگاہ کیجیے۔ جی، ماہ رمضان کا بابرکت مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور ماہ رمضان کا پہلا روزہ آج افطار کیا گیا۔ اب سے کچھ دیر قبل گورنر ہاؤس میں عوامی افطار کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام کی بڑی تعداد موجود تھی، اور اس میں ملک کے معروف ثنا خوان رسول وحید ظفر قاسمی نے بھی اپنی خوبصورت آواز سے شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی، اور پورے رمضان گورنر ہاؤس میں یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور افطار کے بعد عوام کو
जो इंतज़ार रहता है वो कुरानंदाजी के ज़रिए तोहफ़ का रहता है। किसी को मोबाइल फ़ोन मिलता है तो किसी को बाइक, तो कोई होता है प्लॉट का ख्वाहिशमंद। और आज भी गवर्नर हाउस में आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसमें फैमिलीज़ थी, बच्चे, बड़े, जिन्होंने सब बैठकर एक साथ अफ्तार किया और रूह परवर मंजर में दुआओं के साथ और नात रसूल मकबूल के आवाज़ के साथ और यहाँ पर मौजूद लोग अल्लाह के ज़िक्र में महव होकर और इस माह रमज़ान की बरकतें, रहमतें समेटते हुए आज अपना पहला रोज़ा अफ्तार किया। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि खुसूसी अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े और इदारा जाती मुआवनत को मौसर बनाने का मिशन। वज़ीर आला सिंध ने स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जॉब पोर्टल और शिकायत के अजाले के निज़ाम की तैयारी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि कानून में हर सरकारी महकमे में खुसूसी अफराद के लिए 5% मुलाजमत कोटा, तालीमी पॉलिसियों पर अमल, आगाही मुहिमात और सालाना रिपोर्ट्स की तैयारी शामिल है, ताकि कानून पर मौसर अमल दरामद और उसके असरात की निगरानी की जा सके। वज़ीर आला सिंध ने सखर IBA के साथ इश्तराक की मंजूरी दी ताकि खुसूसी अफराद के लिए एक जॉब पोर्टल तैयार किया जा सके। इस पोर्टल के जरिए सूबाई महकमे और खुसूसी अफराद बराह रास्त मुंसलिक होंगे, जिससे शफाफियत और कारकर्दगी में इजाफा होगा और मेरिट पर मबनी भर्तियों को यकीनी बनाया जाएगा। महकमे तालीम की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के दौरान तालीमी इदारों के औकात कार जारी कर दिए गए। नए औकात कार का इतलाक सूबे भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीर ता जुमेरात सिंगल शिफ्ट स्कूल सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे, 12:30 तक जुमेरात तक खुले रहेंगे, जबकि डबल शिफ्ट स्कूल की पहली शिफ्ट 7:30 से 11:30 तक जारी रहेगी और दूसरी शिफ्ट सुबह 11:45 से दोपहर 2:45 तक होगी। जुमे को सिंगल शिफ्ट स्कूल सुबह 8 बजे से 11:30 तक खुले रहेंगे, जबकि जुमे को डबल शिफ्ट वाली जो शिफ्ट है, जो स्कूल्स हैं, वो सुबह 7:30 से 10:30 तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट सुबह 11:45 से दोपहर 1:15 तक जारी रहेगी। घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का नामजद फरीकैन की अदम हाजिरी पर एक्शन। अदालत ने नामजद फरीकैन के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने 10,000 रुपए के मुचलके कीमत वारंट जारी किए हैं। फरीकैन में दरख्वास्त गुजार खातून का शोहर और दीगर शामिल हैं। अदालत ने समाअत 3 मार्च तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत के समन जारी करने के बावजूद फरीकैन ने अदालत में हाजिर होकर जवाब जमा नहीं कराया है। दरख्वास्त डोमेस्टिक वायलेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत दायर की गई। माही सयाम में अफ्तार दस्तरख्वान की रौनकें। छिपा वेलफेयर की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार दस्तरख्वान का एहतमाम किया गया है, जिससे रोज़ाना 1000 से ज़ायद मुस्तहिक अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, आगाह कीजिए। की तरह इस साल भी चीपा वेलफेयर की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने जो है वो अफ्तार का दस्तरखान लगाया गया और आज पहला रोज़ा है। पहले रोज़े की अफ्तारी यहाँ पर अभी हुई है अब से कुछ देर पहले और यहाँ पर बड़ा ही ज़बरदस्त जो है सबसे बड़ा दस्तरखान यहाँ पर सजाया गया था। मेरे कैमरामैन जानशर आपको दिखा सकते हैं, टेबलों की बड़ी यहाँ पर तादाद मौजूद है, जिससे जो है हज़ारों लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर जो है वो अफ्तार की है। और मुख्तलिफ जो है अशिया खुर्दनोश यहाँ पर मौजूद थी, जिसमें समोसे, पकौड़े और इसके साथ साथ फ्रूट चाट, जलेबी, दही बड़े, मुख्तलिफ शरबत का जो है यहाँ पर इत्तमाम किया गया था। मेरे साथ तर्जुमान मौजूद हैं चीपा के शाहिद, हम उनसे बात कर लेते हैं। तो शाहिद भाई, इस साल भी आप बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने यहाँ पर अफ्तार का दस्तरखान लगाया है। अफ्तार के साथ साथ और भी क्या काम चीपा वेलफेयर कर रहा होता है इस पूरे रमज़ान, उसके हवाले से भी बताइएगा। और तकरीबन कितनी तादाद में लोग जो है इस अफ्तार के दस्तरखान से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं? रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान में 1 लाख अफराद के लिए सैर अफ्तार का जो है छिपा किचन में दस्तरखान तैयार किया जाता है और पूरे रमज़ान जो है इस साल भी पूरे पाकिस्तान में 1 लाख राशन जो है तमाम अफराद में तकसीम किया जाएगा जो उसके मुस्तहिक होंगे। हर साल की तरह इस साल भी यही सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आज भी माशाल्लाह आपने देखा होगा हज़ारों लोग यहाँ पर आके बैठ के जो है इफ्तार करके गए। इसी तरह कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जिन जहाँ पर हमारे सेंटर मौजूद हैं वहाँ पर इफ्तार का इस्तेमाल किया गया। दूसरी चीज़ ये आइटम हमने देखा है बहुत सारे थे जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। जो लोग मजदूर पेशा अफराद हैं, जो घरों को नहीं पहुँच पाते अपने काम से फारिग होने के बाद, फिर वो यहीं पर इफ्तार करते हैं, या राह चलते लोग जो अपने घर नहीं पहुँच पाते, ऑफिस से निकलते, वो भी यहाँ पर रुककर इफ्तार करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है हमारे ऐसे शहर में इस तरह के इंतज़ामात होना ताकि लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचे?
बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक लोगों की बात है, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, महंगाई बहुत है, और उसके बाद फ्रूट ख़रीदना लोगों के लिए जो इसकी उनकी पहुंच से दूर है, इसलिए छिपा दस्तरखान पर फ्रूट, जूस, शरबत और बिरयानी का और खाने का बंदोबस्त किया गया ताकि वो अपना इफ्तार जो है अच्छे तरीके से अपनी फैमिली की तरह यहाँ से करके जाएँ। चीपा के तर्जुमान शाहिद जिनका ये कहना है कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है यहाँ से अफ्तार करके जा सकते हैं, और ख़ास तौर पर यहाँ पर चीपा की जानिब से जो रोज़ा कुशाई का भी जो है इत्माम किया गया है। जो नन्हे बच्चे हैं जो कि पहली दफ़ा रोज़ा रखते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक स्टेज तैयार किया गया है, और वो यहाँ पर आए, यहाँ पर जो है उनकी रोज़ा कुशाई भी की जाएगी, और साथ साथ उनको जो है वो पहला रोज़ा रखने पर जो है वो चीपा की जानिब से जो है वो इनामात भी दिए जाएंगे। शहरी कायद में गैस मसाइल हल न हो सके, शहरी में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रेलवे कॉलोनी के रिहायशियों का कहना है कि शहरी में गैस सिर्फ 15 से 20 मिनट तक रही, प्रेशर इंतहाई कम था, खाना होटलों से खरीदना पड़ता है, महंगे सिलेंडर भरवाने पड़ते हैं, महीने में 7 से 8 हज़ार रुपए इजाफी खर्चा होता है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। शहर कायद में गैस बहरान, शहरी परेशान, शहरी के औकात में भी मुश्किलात कम नहीं हो रही। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में जहां शहरी और इफ्तार के औकात में भी गैस की फरहमी यकीनी बनानी चाहिए, वहां शहरी गैस की अदम दस्तयाबी से परेशान दिखाई देते हैं। रेलवे कॉलोनी के रिहायशियों का कहना है कि शहरी के वक्त गैस सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए आई, इसका प्रेशर भी इंतहाई कम था, जिसके बायस खाना तैयार करना मुश्किल हो गया। गैस न होने से शहरी और इफ्तार के लिए खाना होटलों से खरीदना पड़ रहा है, जिससे अखराजात में इजाफा हो गया। कई घरों में सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, महीने में 7 से 8 हज़ार रुपए इजाफी खर्च हो रहे हैं। आज शहरी में भी गैस आया था, मगर तकरीबन 10 से 15 मिनट था, उसके बाद गैस नहीं आया। बिल तो डबल आते, लेकिन गैस तो बिल्कुल हमने देखा ही नहीं है कि गैस कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि रमजानुल मुबारक के दौरान कम अज कम शहरी और इफ्तार के औकात में गैस की बिला तात्तुल फरहमी यकीनी बनाई जाए, ताकि इन्हें मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अजलान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। गवर्नर हाउस में अवामी अफ्तार का एहतमाम, जिसमें गुज़श्ता बरस की तरह इस साल भी शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अफ्तार के बाद कुरानदाजी के जरिए खुशनसीबों में इनामात तकसीम किए गए। अफ्तार दस्तरखान में नात ख़्वानी ने भी समा बांध दिया। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल, आगाह कीजिए। जी, माह रमज़ान का बाबरकत महीने का आगाज़ हो चुका है और माह रमज़ान का पहला रोज़ा आज अफ्तार किया गया। अब से कुछ देर कबल गवर्नर हाउस में अवामी इफ्तार का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी, और इसमें मुल्क के मारूफ सना-ख़्वान रसूल वहीद ज़फ़र काज़मी ने भी अपनी खूबसूरत आवाज़ से शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की। और पूरे रमज़ान गवर्नर हाउस में ये सिलसिला जारी रहेगा, और अफ्तार के बाद अवाम को जो इंतज़ार रहता है वो कुरानदाजी के ज़रिए तोहफ़ का रहता है। किसी को मोबाइल फ़ोन मिलता है, तो किसी को बाइक, तो कोई होता है प्लॉट का ख्वाहिशमंद। और आज भी गवर्नर हाउस में आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसमें फैमिलीज़ थी, बच्चे, बड़े, जिन्होंने सब बैठकर एक साथ अफ्तार किया और रूह परवर मंजर में दुआओं के साथ और नात रसूल मकबूल के आवाज़ के साथ, और यहाँ पर मौजूद लोग अल्लाह के ज़िक्र में महव होकर और इस माह रमज़ान की बरकतें, रहमतें समेटते हुए आज अपना पहला रोज़ा अफ्तार किया। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि खुसूसी अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े और इदारा जाती मुआवनत को मौसर बनाने का मिशन। वज़ीर आला सिंध ने स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जॉब पोर्टल और शिकायत के अजाले के निज़ाम की तैयारी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि कानून में हर सरकारी महकमे में खुसूसी अफराद के लिए 5% मुलाजमत कोटा, तालीमी पॉलिसियों पर अमल, आगाही मुहिमात और सालाना रिपोर्ट्स की तैयारी शामिल है, ताकि कानून पर मौसर अमल दरामद और उसके असरात की निगरानी की जा सके। वज़ीर आला सिंध ने सखर IBA के साथ इश्तराक की मंजूरी दी, ताकि खुसूसी अफराद के लिए एक जॉब पोर्टल तैयार किया जा सके। इस पोर्टल के जरिए सूबाई महकमे और खुसूसी अफराद बराह रास्त मुंसलिक होंगे, जिससे शफाफियत और कारकर्दगी में इजाफा होगा और मेरिट पर मबनी भर्तियों को यकीनी बनाया जाएगा। महकमे तालीम की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के दौरान तालीमी इदारों के औकात कार जारी कर दिए गए। नए औकात कार का इतलाक सुबह भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीर ता जुमेरात सिंगल शिफ्ट स्कूल सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे, 12:30 तक जुमेरात तक खुले रहेंगे, जबकि डबल शिफ्ट स्कूल की पहली शिफ्ट 7:30 से 11:30 तक जारी रहेगी और दूसरी शिफ्ट सुबह 11:45 से दोपहर 2:45 तक होगी। जुमे को सिंगल शिफ्ट स्कूल सुबह 8 बजे से 11:30 तक खुले रहेंगे,
जबकि जुमे को डबल शिफ्ट वाली जो शिफ्ट है, जो स्कूल्स हैं, वो सुबह 7:30 से 10:30 तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट सुबह 11:45 से दोपहर 1:15 तक जारी रहेगी। घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का नामजद फरीकैन की अदम हाजिरी पर एक्शन। अदालत ने नामजद फरीकैन के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने 10,000 रुपए के मुतल्लिक़ कीमत वारंट जारी किए हैं। फरीकैन में दरख्वास्त गुजार खातून का शोहर और दीगर शामिल हैं। अदालत ने समाअत 3 मार्च तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत के समन जारी करने के बावजूद फरीकैन ने अदालत में हाजिर होकर जवाब जमा नहीं कराया है। दरख्वास्त डोमेस्टिक वायलेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत दायर की गई।